Good morning, class. So today I'm going to discuss the chapter Biodiversity and Conservation from the PowerPoint presentation. So I'm sharing the slide with you. My name is Hemlata Yadav, and because one video was I recently made on the biodiversity, and it was explaining from the PDF. I want that. You also get an explanation from the PowerPoint because it is more easy to learn from the slides and from the images. So this slide is visible to you. I think the range of biodiversity in our biosphere. There is immense biodiversity exists in all level of biological organization ranging from macromolecule within the cells to biomes. Means there are different kinds of macromolecule, in our bodies, means proteins, carbohydrates, and we have different variety of we can say we have two types of nucleic acid. So biological organisms have different kinds of biomolecule. Even biological organisms also live in variety of biomes. So types of biodiversity, the Edward Wilson, who is a sociobiologist, described the combined diversity at all the levels biological organization into three categories, that is genetic diversity, which is the base of all the diversity, species diversity, and then ecological diversity. सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी, देन स्पीशीज, देन इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं उससे? जेनेटिक डाइवर्सिटी सिंगल स्पीशीज की रेंज बताती है, और सिंगल स्पीशीज का जीनोम जो हर एक का और इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, बिकॉज सभी इंडिविजुअल के डीएनए यूनिक कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनके पेरेंट्स के. और आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो. So genetic diversity is at enormous. Species diversity means there are different types of species around us. Like in this image, elephant is seen, polar bear is seen, giraffe is seen, tiger is seen, and rhinoceros is seen. So example of species diversity is given in the NCERT's Western Ghats. They have greater amphibian diversity than the Eastern Ghat. The frogs, types of frogs, the number is large in the Western Ghat than in the Eastern Ghat. Ecological diversity is covering the ecosystems. Means in India, there is a great diversity in ecosystem levels such as desert, rainforest, mangroves, coral reefs. So this is also ecological diversity. Now conservation for our own existence. Why are we conserving? Because conservation is important for our own existence. And in the earth, we have faced different types of extinction also, and many species have extincted. So if we do not conserve the biodiversity, we could lose the wealth of our within 2 centuries, because the speed of extinction is very high. Now, therefore, we have to conserve it. This is honey pollinators. Now, species diversity in the world. IUCN has discovered species in 1.5 million number, and still the Robert May, who is an ecologist, also tell that the species diversity is not to 1.5 million, it is nearly 7 million in number. And the global diversity about 7 million. And now we have some rough estimates of Robert May that the species diversity is 7 million. Biodiversity at global level, more than 70% are recorded are animal, 22% recorded are plants. Among animals, insects are the most species. Means insects variety is the largest in the animals. Taxonomic group, it is 70% of the total animals. So every 10 animals, in every 10 animals, 7 are insects.
Number of fungi species in the world is more than the combined total number of species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. मीन्स फंगस का जो अमान नंबर है वो इन सभी एम्फीबियंस रेप्टाइल्स मैमल्स इनके नंबर को ऐड करने से आता है. बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस आर नॉट एट ऑल एस्टिमेटेड, and if we accept molecular or biochemical criteria for grouping, then their diversification will run in the millions. Means सबसे ज्यादा तो बायोडाइवर्सिटी फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही होगी, बट हम वायरसेस की, प्रोकैरियोट्स की हम बायोडाइवर्सिटी का अकाउंट में नहीं लेते क्योंकि वैसे भी वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं. Now we will move to next slide. It's different kinds of bird, animals, and dog are shown here. Diversity at national level. India is one of the 12 mega diverse countries, and India has 2.4% of the world's area there, but still 8.1% of global biodiversity is there in the India. 45,000 of plants and 90,000 species of animals have been recorded in India. According to May Global Estimate, 1 lakh plant species and 3 lakh animal species are there. And this is the means monkey with their baby. And pattern of biodiversity, diversity of the plant animal is not uniform throughout the world, but show uneven distribution because we have gradients. Earth is not, we can say Earth is a sphere, so it's the solar radiations are not uniform on the Earth. Somewhere it has more radiations, मीन्स सनलाइट कहीं पर ज्यादा होती है कहीं पर कम. और आपको पता है इक्वेटर के पास वाले एरिया में ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं देन द पोल्स. सो दे इट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. तो अब हम देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जहाँ ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है देन द टेम्परेट एरियाज. अगर हम दूर जाते हैं तो उससे टेम्परेट एरियाज के एनिमल्स दिखा रखे हैं आपको, कम होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरियाज. पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोलंबिया का एग्जांपल लेते हैं कि कोलंबिया तो इक्वेटर के पास है तो वहां पर 1400 बर्ड्स हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो इक्वेटर से दूर होता है वहां पर 41 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. 41 डिग्री पर जो न्यूयॉर्क पड़ता है उसमें सिर्फ 105 बर्ड्स हैं. एंड जो ग्रीनलैंड पड़ता है 71 डिग्री पर साउथ में, सॉरी नॉर्थ में, वहां पर 56 स्पीशीज ही रह जाती है बर्ड की. तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से कोलंबिया से 1400 से स्पीशीज 105 हो गई. एंड 14 कोलंबिया में 1400 स्पीशीज थी. एंड इट बिकम्स इन जब न्यूयॉर्क की बात आई तो 41 डिग्री लैटिट्यूड पे it had only 105 species of birds, and in Greenland it has only in which is Greenland is at 71 degrees, it has only 56 species of birds. So इससे हमें पता चलता है कि लैटिट्यूड्स में जो बायोडाइवर्सिटी होती है it keep on decreasing as we move from tropics to the poles. In India situated tropical altitude 1200 species. इंडिया में बहुत बर्ड्स हैं, 1200 बर्ड्स हैं बिकॉज इंडिया भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है. फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन्स अप टू 10 टाइम एज many species of vascular forest of equal area in temperate region. मीन्स ट्रॉपिकल एरिया का जो फॉरेस्ट होगा सेम एरिया का एंड टेम्परेट एरिया के फॉरेस्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसमें 10 टाइम्स ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट लोकेटेड है साउथ अमेरिका में, उसकी ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी नोट करी जाती है. यहाँ पर दिए हुए हैं नंबर के प्लांट के स्पीशीज 40,000 है, स्पीशीज ऑफ फिशेस 3,000 है. एंड आप देख सकते हैं स्लाइड में, और आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले
रीजंस क्या है बायोडाइवर्सिटी के ज्यादा होने के ट्रॉपिकल एरिया में? So there are three reasons. Number one reason is that the tropics are subjected to frequent glaciation in the past, and tropics are not subjected. Means temperate regions are subjected to frequent glaciation because temperate areas are near the poles, and tropics have undisturbed for million of years. And therefore यहाँ पर long evolutionary time होता है species diversification का. ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में टेम्परेट इन्वायरमेंट से ज़्यादा वी कैन से कांस्टेंट क्लाइमेट रहते हैं और वो सीजनल नहीं होते हैं. मींस वहाँ पर कम क्लाइमेट चेंज होता है ट्रॉपिकल एरिया में और प्रिडिक्टेबल क्लाइमेट होता है. इसकी वजह से ग्रेटर डाइवर्सिटी मिलती है. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप सेकंड पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का कि ये बताता है अलेक्जेंडर वन हुम्बोल्ट ने, जो कि एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि विद इन अ रीजन अ स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. The relationship between species richness and the area for a wide variety of taxa turns out to be rectangular hyperbola. इन दोनों के बीच में हमने जब एक रिलेशनशिप देखी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें मिला. लॉग स्केल पे अगर हमने इसको बनाया तो स्ट्रेट लाइन हमको मिली. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये ग्राफ है ये रेक्टेंगल हाइपरबोला का ग्राफ है कि एक पर्टिकुलर रीजन में स्पीशीज रिचनेस पहले तो इंक्रीज हुई, when then it becomes up to a certain limit it becomes straight line. And जब हम इसे log scale पे लिया तो it becomes a straight line. So equations are also given in the front of the graph, and that the above graph is having equation s is equal to ca की power z. This is in the exponent form z, and log s, when we take the log we have will change into log s, log c will change into log c, and z exponent will come forward of the a and it becomes z log a. ऐसे आपको याद रखना है ये ग्राफ. आपका एक्स एक्सिस पे एरिया जब हम लेते हैं और वाई एक्सिस पे स्पीशीज रिचनेस लेते हैं तो इस तरह का ग्राफ बनता है. स्पीशीज रिलेशनशिप को लॉगरिथमिक स्केल पे वी हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप. log s is equal to log c plus z log a. S is equal to species richness, as Z is the regression coefficient and C is the y-intercept. Value of Z lies in the range 0.1 to 0.2 in all taxonomic group of all region. Species area relationship among very large area, the slope of the line to be much steeper, Z value in the range of 0.6 to 1.2. तो z आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है, स्लोप ऑफ द लाइन है, एंड c इज द y इंटरसेप्ट. तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप जब स्टीपर होगा तो दैट मीन्स कि वहां पर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा मिल रही है हमको. कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज will be more beneficial. Why we say that? The next slide is saying that what is the importance of the species for the community, for the ecosystem. So हम बोलते हैं कि कम्युनिटी जिसमें ज्यादा स्पीशीज होती हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं वो स्टेबल होती है. What are the real reason for the ecological stability and stability of biological community? Real reason क्या है? तो यहाँ पर कुछ रीजन दिए हुए हैं. क्योंकि पहला रीजन है कि वो ईयर टू ईयर स्टेबल प्रोडक्टिविटी देती है, क्योंकि प्लांट स्पीशीज सेम नंबर में रही, डिस्टर्ब नहीं हुआ इकोसिस्टम, तो वेरिएशन नहीं आए प्रोडक्टिविटी में, ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी सेम रही. इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस. कभी कभी अगर डिस्टर्ब हो भी जाती है स्पीशीज डाइवर्सिटी नेचुरली या मैन मेड तरीकों से, तो रेजिस्टेंस शो करेगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी और उसके अंदर कम चेंजेस आएंगे. तो स्टेबिलिटी हुई इसलिए इसमें. एंड लेस ईयर टू ईयर वेरिएंट वेरिएशन इन द टोटल बायोमास, ये भी कम होते हैं उनके अंदर. इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी. अगर बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है? पॉल अर्लिख नाम के स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट ने एक एरोप्लेन को एग्जाम्पल लिया कि एक एरोप्लेन को अगर हम मान लें कि वो हमारा इकोसिस्टम है, तो एरोप्लेन ये है, इसके विंग्स हैं, और अगर विंग्स एरोप्लेन के आपके
कह सकते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एरोप्लेन के विंग्स। और एरोप्लेन के विंग्स एरोडायनेमिक्स की वजह से आपके इस तरह से इम्पोर्टेंस होते हैं कि वो एयर एयर की सेफ्टी को, फ्लाइट की सेफ्टी को क्या रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं फ्लाइट की सेफ्टी को, और उनके ऐसे एरोप्लेन बिल्कुल सही से फ्लाई करता है। सो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल रहे रिवेट्स का, तो एरोप्लेन के प्लेन के जो विंग्स होंगे उनको भी किसी नट बोल्ट से टाइट किया जाएगा। एंड अदर पार्ट्स, यहाँ पर अंदर जो लोग बैठे हुए होंगे इसके फ्लाइट के चेम्बर में, उनके भी बहुत सारे अलग अलग रिवेट्स होंगे। रिवेट्स मीन्स द जॉइनिंग कनेक्टिंग पार्ट ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर हम इस एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लें कि ये एक इकोसिस्टम है, तो इसमें अगर रिवेट्स, कोई पैसेंजर इसमें से रिवेट्स रिलीज करने लगे, सो कौन सा रिवेट सबसे इम्पोर्टेंट होगा? विंग्स वाला, बिकॉज विंग्स पे से अगर कोई रिवेट रिलीज हो गया तो वो क्या एरोप्लेन को क्रैश कर देगा। बिकॉज कीस्टोन स्पीशीज, जो विंग्स हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्लाइट सेफ्टी में। तो अगर हम अंदर के कोई रिवेट्स, थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स अगर हम निकालें अंदर सीट बेल्ट से, या दूसरे जहाँ लगेज रखते हैं वहां के एरिया से, या अलग सीट्स के और पार्ट से अगर कोई रिवेट निकालने लगे, तो ट्रैवलिंग इतनी हैम्पर नहीं होगी। बट अगर कोई जाकर विंग्स के रिवेट से निकालने लगेगा तो डेंजरसली वीक हो जाएगा प्लेन और फर्दर गिर जाएगा। The loss of the rivets on the wing is obviously a more serious threat to the flight and flight safety than the loss of the few rivets on the seats. सीट्स पे रिवेट्स निकलने से, विंडोज के रिवेट्स निकलने से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी विंग्स के रिवेट्स निकलने से होती। तो कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं इकोसिस्टम में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि कीस्टोन स्पीशीज होती हैं, जैसे कि टॉप प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स अगर मर जाते हैं तो प्रे आपस में बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, एक दूसरे को किल कर देते हैं और रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं, तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो टॉप प्रीडेटर स्पीशीज आर द कीस्टोन स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम, तो दे शुड नॉट बी killed. If more diversity is there, more stability is there. Rivet Popper hypothesis में aeroplane is the ecosystem। आप यहाँ से इनके अगर आपको रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस समझाने को आ जाए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एरोप्लेन यहाँ इकोसिस्टम का काम प्ले कर रहा है, रिवेट यहाँ स्पीशीज का काम प्ले कर रही है। एंड प्रॉपर पॉपिंग रिवेट मीन्स कॉज फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज खत्म होती जो जा रही हैं। फ्लाइट सेफ्टी इज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम एंड रिवेट ऑन द विंग इज द की स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो की स्टोन स्पीशीज हैं, लाइक प्रीडेटर स्पीशीज लाइक टाइगर, लॉयन। ओके, सो द टॉप प्रीडेटर, वो जो कि इकोसिस्टम को मैल बैलेंस कर रहे हैं, वही आपके क्या है, की स्पीशीज है। तो यहाँ पर हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस की क्या रीजंस हैं। तो addition of and deletion of the species are taking place in nature by taking a long period of time. Two reasons of biodiversity loss, natural and anthropogenic। नेचुरल रीजन भी होता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, एंड एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड भी होता है। मेन रीजन आजकल रहता है पोल्यूशन, मैन मेड मेन रीजन है। स्पीड करने के लिए है। ये आपको कुछ नेचुरल रीजन दिख रहे हैं, फॉरेस्ट फायर हो गई है, सुनामी आ गया है, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, थंडर लाइटनिंग है। और यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक रीजन है कि कॉलोनाइजेशन ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड का, ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि वह जंगल को साफ कर रहा है, पैसिफिक आइलैंड्स को के रहने लग गया है। तो 2000 स्पीशीज नेटिव बर्ड की इसलिए एक्सटिंक्ट हो गई हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से। IUCN रेड लिस्ट में 200 एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट कर रखे हैं विच आर नियर द एक्सटिंक्शन, एंड 784 स्पीशीज हैं जिनमें 338 वर्टिब्रेट्स हैं
and 59 invertebrates, 87 plants in the last 500 years. The and as some animals which have recently extinct are dodo of Mauritius, quagga of Africa, thylacine of Australia, steelhead sea cow, Russia, Bali javan and Caspian tigers. आप एग्जाम्पल्स के इनके डायग्राम भी देखोगे, ये डोडो है मॉरिशस का, ये क्वागा है, जीब्रा की तरह लगता था अफ्रीका का, देन थैलेसाइन है, सो टाइप ऑफ we can say wolf-like structure. Then steelhead sea cow is a mammal, which is sea mammal, and it's a herbivorous mammal inside the called sea cow. And Bali tiger is like this, Javan tiger is like this, Caspian tiger is like this. So these are extinct. Threat of extinction. Amphibians appear to be more vulnerable for extinction. Amphibian अब extinct होने वाले हैं. 12% of the bird, 23% of the mammal, and 32% of all the amphibians, 31% of gymnosperms in the world faces the threat of extinction. A lot of species have been extinct from the earth even before the appearance of human. And so threat of extinction long during the long period, the origin and the diversification of species. There were 5 episodes of mass extinction हो ही चुके हैं. अभी तक 6th एक्सटिंक्शन अभी प्रेजेंटली चल रहा है. प्रेजेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट 100 to 1000 टाइम फास्टर है देन प्री ह्यूमन टाइम. आर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल द फास्टर रेट एंड प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू. तो हम 100 साल में ही सारी बायोडाइवर्सिटी को, हाफ बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर सकते हैं. अब देख रहे हो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड यूज हो रहा है, काफी प्लांट कट, ट्रीज काट दिए गए हैं. कॉजेज बायोडाइवर्सिटी के लॉस के 4 हैं, जिन्हें इवल क्वार्टेट भी बोलते हैं. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट कॉज, over exploitation second, alien species invasion third, fourth is the co-extinction. Habitat loss and fragmentation most important cause during the animal and the plant to extinct. One tropical forest cover more than 14% of the earth's land surface area. पहले इतना surface area forest में था, पर अब 6% से भी कम एरिया फॉरेस्ट के अंडर है. 1000 मोर हेक्टेयर फॉरेस्ट के लैंड को लास्ट हो चुका है. Amazonian rainforest, now known as lung of the planet, harboring millions of species, being cut and cleared for cultivating soya beans, to convert grasslands for the raising beef cattle. यहाँ पर ट्रीज को कट करके सोयाबीन उगाया जा रहा है, फॉरेस्ट ट्रीज को कट करके, और यहाँ पर ग्रासलैंड्स बनाए जा रहे हैं अमेज़न फॉरेस्ट में बीफ कैटल को रियर करने के लिए. सो दिस इज अ वेरी एरिया ऑफ कंसर्न व्हेन हैबिटेट आर ब्रोकन. जब हम किसी बड़े हैबिटेट को छोटे छोटे हैबिटेट में, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब ये अमेज़न फॉरेस्ट है, इसमें से आप कहीं पर एक बहुत बड़ा एरिया क्लियर कर देते हो, ये वाला, और इसको आप यहाँ पर ग्रासलैंड बना देते हो, तो अब यहाँ का जो टाइगर है उसकी टेरिटरी खत्म हो जाती है. तो वो ग्रासलैंड्स के अंदर कैसे रहेगा, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूरी खत्म होगी अगर फॉरेस्ट क्लियर होगा तो देयरफॉर दिस इज नोन एज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन. तो टाइगर्स को, बर्ड्स को, बड़ी बड़ी एनिमल्स को बड़ी बड़ी टेरिटरीज चाहिए होती हैं, तो उनकी पॉपुलेशन इस वजह से कम हो जाती है, उनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती है. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़े फॉरेस्ट में ये एरिया बिल्कुल खाली है. तो दिस इज द हैबिटेट फॉर फ्रेगमेंटेशन. यहाँ पे खाली कर दिया, तो यहाँ पर ये एरिया खाली होने से हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया, बिकॉज कई जानवर यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे सही से, बिकॉज बीच में एक बहुत बड़ा क्लियर एरिया इन्होंने कर दिया है. और फॉरेस्ट फायर्स, यहाँ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो रहा है, बीच में बड़े से फॉरेस्ट एरिया में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किया गया है. इसकी वजह से भी टेरिटरी डिस्टर्ब होती है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ने अपनी कंजम्पशन के लिए, रहने के लिए, ग्रीड्स के लिए, और उसके एक्सप्लॉइट कर दिया है नेचुरल रिसोर्सेज को. मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई लास्ट 500 ईयर्स में. स्टिलर सी का पैसेंजर पिजन, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ ड्यू टू ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट मेरीन फिशेज, उनकी भी एक्सटिंक्शन हो गई. मेरीन फिशेज भी बहुत खत्म हो गई हैं. एलियन स्पीशीज इन्वेजन, फॉरेन स्पीशीज अगर कोई इंट्रोड्यूस की जाती है डेलिबरेटली कहीं पर,
नोइंगली, तो इन्वेजिव स्पीशीज एंड नेटिव स्पीशीज का नंबर डिक्लाइन कर देती है। एग्जाम्पल होता है नाइल पर्च का, ये पिछले साल सीबीएसई में आया था। So Nile perch is the example which is introduced into the Lake Victoria and Africa led to the extinction of ecologically unique more than 200 species of cichlid fish in the lake. नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करने से चिचलेट फिश खत्म हो गई। इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, इन्होंने क्लैरियस डैनिपियस ने एक्वाकल्चर के दौरान कैटफिश को जब इंट्रोड्यूस किया तो उसने थ्रेट कर दिया इंडिजिनस कैटफिश के लिए। पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिश को ही कैच कर रहे हैं, तो को एक्सटिंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ऐसे दो स्पीशीज है जो आपस में बहुत एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो एक अगर मरता है तो दूसरा भी मर जाता है, एक अगर एक्सटिंक्ट हो दूसरा भी खत्म हो जाता है। तो इन केस ऑफ को एवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर, जो हम पे जिन स्पीशीज के बीच में म्यूचुअलिज्म देखा जाता है, तो वहां पर अगर पॉलिनेटर मरेगा, पॉलिनेटर अगर इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड से बहुत ज्यादा हार्म होगा, तो उसकी लास्टली उसकी प्लांट के ऊपर भी असर होगा कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड को एक्सटेंशन। देख रहे हो बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड्स जो कई सारे फ्लावर्स को पॉलिनेट करती हैं, हनी बीज हैं, तो ये को पॉलिनेटर्स हैं, इनको आपस में ही ये कंजर्व हो सकते हैं। नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, द टू रीजंस, वन इज नैरोली यूटिलिटेरियन, थ्री रीजंस आर देयर, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल रीजंस। नैरोली यूटिलिटेरियन हमारे कंजर्वेशन के बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट बेनिफिट है नेचर से, जो हमें फूड मिलता है, फायरवुड मिलती है, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलते हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन है। So all the benefits which we get directly from the forest is the narrowly utilitarian, and conservation of biodiversity for economical importance is referred to as economical importance के लिए अगर हम कंजर्व कर रहे हैं तो उसे नैरोली यूटिलिटेरियन बोलते हैं। सो बहुत सिंपल हो गया ये। कंजर्वेशन अगर बायोडाइवर्सिटी का कर रहे हैं इकोनॉमिकली, मतलब कमर्शियली प्रोडक्ट्स लेने के लिए, तो उसे नैरोली यूटिलिटेरियन कह रहे हैं, जैसे कि फायरवुड, फ्यूल वुड, कंस्ट्रक्शन वुड, ये सब। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, इमेज दे रखी है, फूड मिल रहा है, हमें एलोवेरा मिल रहा है, कॉटन मिल रही है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत सारी चीजें फ्री में ही दे रही है, जैसे बहुत सारी ऑक्सीजन है, अमेजोन फॉरेस्ट लंग्स हैं अर्थ का, तो 20% टोटल ऑक्सीजन को अमेजोन फॉरेस्ट पर हमें दे देता है। एस्थेटिक प्लेजर हमें देता है जब हम वॉक करते हैं किसी भी जंगल में, तो फिर यहाँ पर हमको इजीली यहाँ पर हमें बहुत सारे एनिमल्स देख, वो है। नाउ आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हो कि कितने सारे एनिमल्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। एंड एथिकल रीजंस क्या है, मॉरल वैल्यू भी है हमारी, क्योंकि हम बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए फॉरेस्ट कितने इम्पोर्टेंट है, एंड हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम फॉरेस्ट को बचाएं। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो एनिमल्स की इमेजेस है जानवरों के साथ, क्योंकि वो मतलब हम समझते हैं इम्पोर्टेंस फॉरेस्ट की। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दो तरह से बायोडाइवर्सिटी बचाई जा सकती है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में हैबिटेट में अगर हम वहीं पर जहाँ पर प्लांट्स रह रहे हैं, जंगल है जहाँ पर एनिमल रह रहे हैं, अगर हम वहीं पर उनकी नेचुरल इन्वायरमेंट में उनकी प्रोटेक्शन करेंगे तो वो इन सिटू कंजर्वेशन हो जाता है। जैसे कि वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है, और बायोडाइवर्सिटी नेटिव है, एंडेमिक है वहाँ की। तो वहां पर अगर हम पूरे एरिया को बचा लेते हैं, नेशनल पार्क बना देते हैं, सेंचुरी बना देते हैं, तो वहां पर ऑलरेडी उनके एनिमल्स बच जाते हैं। एंड वेस्टर्न घाट्स क्या है, वो हॉटस्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के हमारे इंडिया में, और बायोडाइवर्सिटी के अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हमारे हॉटस्पॉट्स हैं।
तो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को less than 2% कवर अर्थ का लैंड एरिया, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ द हॉटस्पॉट्स कैन रिड्यूस ऑनगोइंग मार्क्स एक्सटिंक्शन बाय 30%। अगर हम हॉटस्पॉट्स को ऐसे कैसे बचाएं तो 30% बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन में इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे, 90 नेशनल पार्क्स आएंगे, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रूव, सेक्रेड लेक, सेक्रेड फॉरेस्ट आएंगी। यहाँ पर एनिमल्स का आप इमेज देख रहे हो कि किस तरह से नेशनल पार्क में हमारे जानवर हैं। लॉयन है, पानी पी रहा है, टाइगर क्रॉस कर रहा है जंगल को, राइनासिरस है, डियर है, तरह तरह की जिराफ है। एक्सिटू कंजर्वेशन में इन दिस अप्रोच जहाँ पर प्लांट बहुत ही कम बचे हैं या एनिमल बहुत ही कम बचे हैं, उनकी इतना शिकार हुआ है कि वो बहुत खत्म हो चुके हैं, तो उनको अब हम लाकर जंगल से निकाल कर उन्हें पकड़कर और अब जू में रखते हैं ताकि वो उनको कोई मार नहीं सके और वो बचे रहें। तो आर्टिफिशियल एरिया में जब हम किसी भी जानवर को बचाते हैं तो उसे एक्सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं कंजर्वेशन की? जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स को रख सकते हैं, बोटानिकल गार्डन में रख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में रख सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हम जीप से बड़े बड़े पार्क्स में घूमने जाते हैं, फिर वहां पर हम जूस में देखते हैं इनको, सफारी पार्क में, वाइल्ड लाइफ पार्क में। or is this what the conservation is conclusion is? The biodiversity is very important. It's a collective responsibility of all the nations to save the biodiversity. The Earth Summit of Rio de Janeiro in 1992 called upon all the nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and its sustainable utilization and means हमने बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर रियो डी जेनेरियो में 1992 में अर्थ समिट करी एंड वहां पर हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन किया। सस्टेनेबल कैसे, सस्टेनेबिलिटी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बेनिफिट्स को। फॉलो अप हुआ, इसका वर्ल्ड समिट हुई एंड जोहान्सबर्ग में 2002 में, साउथ अफ्रीका में 190 कंट्री ने प्लेज लिया कि वो 2010 तक बायोडाइवर्सिटी को, लॉस को, ग्लोबल डाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे। ये उसकी इमेजेस हैं। पहली इमेज है आपकी रियो डी जेनेरियो की एंड नेक्स्ट इमेज है आपकी वर्ल्ड समिट की, और इसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी। सो दिस इज द थैंक यू टू एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग द वीडियो एंड आई होप आपको ये सारा समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी वे में यहाँ पर इमेजेस से और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया हुआ है एंड इमेजेस आपको ज्यादा लर्न रहती हैं। So these topics will be very useful for you because the exam it is always it will come. So biodiversity conservation, I hope it is clear, and happy learning. All the best for your exams. Thank you. If you like the video, please subscribe my channel for more such videos. Thank you.